So, a formal hello to all of you. And this is what we are trying to do today. That is, what is value education? Huh? So, this is what I need to discuss today. Start with the first slide. और हम कोशिश करेंगे कि we will keep the class for half an hour, 40 minutes और उसके बाद जो है we will go for the discussion, है ना? But in between also, if you feel like discussing on any topic, or you feel like that this is a controversial line, or this is something which I do not understand, or this is something which I do not agree to, so please feel free to come out with your own observation and your own queries, है ना? तो कोई issue नहीं है, आप कभी भी चलिए. So let us begin with this, that when we talk about value, है ना? तो value is basically what we value, है ना? It's like the something which is valuable to us becomes a value, है ना? Human values जो होंगे या value education, अगर human values must, और human beings as such must value, और अगर हम वैल्यू एजुकेशन के बारे में बात करें तो दैट इज समथिंग विच इज एडिंग वैल्यू टू एजुकेशन. नाउ हाउ यू ऐड वैल्यू, है ना, इज ए वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. लाइक यू कैन बी एजुकेटेड and you understand that okay, this is how I can create a product, but then whether that product is having a function, so, or whether that product is something which is going to be applicable to humankind and acceptable to humankind as well, तो उन चीजों को थोड़ा सा देखना पड़ता है. वर्च्यूज के लिए कहा जाता है, जैसे हम वैल्यूज और वर्च्यूज पे हम थोड़ा सा शिफ्ट करते रहेंगे टिल द टाइम वी विल बी एक्चुअली डिस्कसिंग वैल्यूज एंड वर्च्यूज एंड ऑल. वो भी थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, बट राइट नाउ फॉर द टाइम बिंग वी से दैट वैल्यूज में चेंज ओवर टाइम, है ना? बट वर्च्यूज आर वेरी ऑब्जेक्टिव एंड यूनिक, है ना? तो वैल्यूज शुड बी बेस्ड ऑन वर्च्यूज, ये एक कहावत भी है और ये एक अंडरस्टैंडिंग भी है जिसको कि हम इनकलकेट करने करेंगे. जो प्रेजेंट स्टेट है ना, उसमें ये है दैट वी आर सेंट टू स्कूल्स टू स्टडी बट रियली टॉट हाउ टू स्टडी. We have been sent to schools, colleges, universities, education institutions. We have been taking a lot of online courses these days, uh, but rarely we are taught how to study. Why I'm saying this is something which I will be disclosing with, say, the upcoming lectures. But right now, you need to understand, and you may agree also, that we study, but somehow we are not taught how to study. Then we are also living without knowing how to live, है ना? ये भी एक प्रॉब्लम है ना, बिकॉज अगर हम ये जानते कि हाउ टू लिव तो दिक्कत नहीं होती जीने में. लेकिन यू मे बी सीइंग अ लॉट ऑफ पीपल गेटिंग अनसेटिस्फाइड, है ना? एग्जाम्स के रिजल्ट्स आते हैं तो लोग सुइसाइड कमिट करते हैं, कभी रिलेशनशिप ब्रेक्स होते हैं तो सुइसाइड करते हैं, कभी और भी बहुत सारे रीजंस के कारण जो है फाइनेंशियली ब्रेक डाउन होते हैं, या देर देर कैन बी एन नंबर ऑफ रीजंस, है ना? फैमिली में प्रेशर पड़ता है किसी चीज को लेके, या कभी कभार people even play a video game or a computer game and die, blue whale, हाँ? पता नहीं क्या क्या रीजंस हैं जिसके कारण से somehow either are uh, we do not know how to live, first thing, and second thing, मतलब कि सिर्फ ये नहीं है कि we kill ourselves therefore we do not know how to live, we are not happy living, है ना? तो ये भी एक इशू है जिसको काफी, and especially among the youth you will find that this is a big problem. And above all, why are we living? है ना? Because we do not have goals, we do not have objectives. या we have goals. मैं अभी थोड़ी देर में आपसे बात करूंगा और पूछूंगा भी कि आपके गोल्स या ऑब्जेक्टिव्स क्या है. रादर मैं पूछूंगा इस तरीके से नहीं, क्या हो बताओ बताओ. I will ask in this sense that have you ever introspect that what is it you are living for, है ना? And how to achieve that. The objective is something, whether the objective has been very clear to you now, or is it defined, and whether you have a program to achieve it as well, have a roadmap to achieve it as well. So this is our current individual state. क्या है? We live our understanding and our assumed relationship, है ना? We do not question, है ना? मैंने आपसे बोला भी था कि हमारे 4 डायमेंशन और 4 ऑर्डर्स है नेचर में, हम के बारे में थोड़ा सा और बात करेंगे. मैंने उस दिन कुछ चीजें स्किप की थी,
और बेसिक ह्यूमन क्वेश्चंस क्या है? व्हाट टू डू, हाउ टू डू। एंड बेसिक ह्यूमन रिक्वायरमेंट क्या है? ये रिजोल्यूट हो जाए, सोल्यूशन और हैप्पीनेस मिल जाए, और नॉलेज ऑफ सेल्फ को एग्जिस्ट, है ना। तो ये कुछ चीजें भी हैं जो कि हम जो है चाह रहे हैं या करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं जल्दी से स्किप करता हूँ इस चीज पे। वैल्यू इज नथिंग बट इक्विवेलेंट टू फंक्शन। ठीक है। अ वैल्यू ऑफ ए थिंग इज इट्स फंक्शन, इंट्रिंसिक एंड इंट्रिंसिक टू मेंटल वैल्यू। मैं ये क्यों कह रहा हूँ? लेट मी गिव एन I will come with the example, but let us try to first understand with this. What are phases of individual? What is human virtue? What are the virtues that are valuable for him? What is a virtuous or who is a virtuous human? Value education talks about what is valuable to a human being and what is the value of a human. ये सारे क्वेश्चंस जो हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कभी कभार हम ये कहते हैं ना कि ह्यूमन बीइंग्स और वैल्यू, या हम हमको कोई वैल्यूएट नहीं कर रहा है प्रॉपरली, है ना, या हमको कोई वैल्यू नहीं दे रहा है। ये तो बहुत जनरल और नेचुरल चीज है दैट वी डू वांट अ लॉट ऑफ, है ना। और वो जब जब नहीं मिलता है या जब जब उसको क्वेश्चन करते हैं, तो it becomes a sorry state of affairs, or sometimes it for that, because you are disrespected, or blamed for something, so on. तो वैल्यू ऑफ ह्यूमन लाइफ में कहीं ना कहीं, अभी हम उस पर भी आएंगे जब बस और आगे चलेंगे, कि रिस्पेक्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइफ। हाँ, तो वो चीज जो है कहीं ना कहीं थोड़ा सा जो है समझ में आती है, लेकिन फिर भी जो है वी हैव ऑल दीज क्वेश्चंस। आपके दिमाग में हो सकता नहीं हो, बट आगे चल के आता है कहीं ना कहीं पे, किसी ना किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे। आई इंटरेक्ट लॉट ऑफ स्टूडेंट, आई शुड कॉल देम एलुमनाई ऑफ आवर यूनिवर्सिटी, एंड मैं धीरे धीरे उनके वीडियोस और लेक्चर्स भी लाता जा रहा हूँ। soon I'm going to record a few more lectures with a few more students about certain things. तो उनसे मैं जब बात करता हूँ तो वो यही कहते हैं कि राइट नाउ वी आर स्टक इन बिटवीन की वैल्यू क्या है चीजों, या क्या चीज, मतलब कि दे हैव मनी नाउ, है ना, एंड दे मे आल्सो आर क्वाइट फाइनेंशियली स्टेबल एंड सो ऑन। लेकिन उसके बाद भी कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं। हम सभी उस दिन डाल पाए थे, कहीं ना कहीं वी आर नॉट, वी आर हेजिटेंट कॉलिंग आवरसेल्व्स हैप्पी, एंड कहीं ना कहीं हम क्वाइट सैड, अनहैप्पी हैं सर्टेन चीजों। तो क्या है वो वर्च्यूज, क्या है वो वैल्यूज, अगर हम इसको कर सकते समझ, तो थोड़ी सी लाइफ आसान हो सकती है, या थोड़ा सा जो है हम चीजों को और बेटर समझ सकते। तो चलिए, लेट अस कम विद द फर्स्ट एक्सरसाइज, एंड दिस इज समथिंग यू कैन मेक फॉर योरसेल्फ। आई गिव यू अ कपल ऑफ मिनट्स। क्या क्या चीजें हैं, है, मेक अ लिस्ट ऑफ इंस्ट्रूमेंटल वैल्यूज लाइक इंट्रिंसिक वैल्यू, हैप्पीनेस। मुझे ये बताइए, ठीक है, कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं, फिजिकल एंड नॉन फिजिकल, हाँ, जो चीजें अगर आप कर लो तो आप जो है हैप्पी हो जाएंगे। जैसे बहुत सारे लोगों के लिए एजुकेशन, डिग्री एंड सो ऑन, या बहुत सारे लोगों के लिए इंस्ट्रूमेंटल चीजें, है ना, कार, होम, है ना, यूरोपियन हॉलीडे, आई डोंट नो व्हाट, और साथ में कि मेरा काश थोड़ा सा वेट कम हो जाता है, या आई रिक्वेस्ट that I cannot see your chat right now. So if you have any question, please feel free to switch on your mic and directly ask. Because a lot of people think that ki they have a little bit of more weight, है ना, body weight. So they need to say decrease, uh, और कुछ लोगों को लगता है कि वो पतले हैं, तो वो चाहते हैं कि थोड़ा सा वेट गेन करें, या फिजिकली कुछ चीजों से बहुत परेशान होते हैं, है ना। तो इसलिए हमने फिजिकल एक्सरसाइजेस भी रखी हैं, और बाकी कुछ इंस्ट्रूमेंटल या कुछ और चीजें जो कि आपकी लिस्ट में हो सकती हैं, उनको इंक्लूड कर लीजिए। आई गिव यू 1 मिनट मोर, है ना, कुछ नहीं, जस्ट 5 थिंग्स, 5 थिंग्स और 10 थिंग्स, मुझे कोई इशू नहीं है, बट आई लाइक टू लिसन टू यू गाइस एंड लर्न
कि क्या है वो चीजें जो कि आपको लगती हैं कि अगर हो जाए तो यू विल बी इंट्रिंसिकली हैप्पी एज वेल, क्योंकि आई हैव गेन्ड a six pack, or I'm in my best figure, या I have a car, or I enjoyed a holiday, or I am finally placed with a 30 lakh package और समथिंग लाइक दैट। क्या है वो सारी चीजें, थोड़ा सा मुझे बताओ, मतलब आप लोग किस तरीके से सोचते हो या देख। प्लीज फील फ्री टू आंसर, स्विचिंग ऑन योर माइक, यू कैन स्टार्ट एनी टाइम, आई विल जस्ट गिव यू 30 सेकेंड्स मोर। 5 चीजें जरा एनलिस्ट करना, और उसको एनलिस्ट करने में 5 सेकंड लगेंगे, और मुझे बताओ कि क्या क्या चीजें हैं। सर इन जनरल एज सच कोई बॉडी फिगर नहीं, बट वर्कआउट इज नाइस, लाइक वर्कआउट फील्स नाइस, इवन बाइक लॉन्ग राइड्स, लाइक बाइक पे लॉन्ग वॉक, बुक्स, दे फील गुड। ओके, और कोई चीज? लर्निंग न्यू थिंग्स, सर नई लर्निंग, हॉबीज। ओके, तो द पीपल हुम आई कैन सी, चलो सैयद फैज से स्टार्ट करते हैं। व्हाट आर 5 थिंग्स जो कि मिल जाए तो बस खुशी हो जाए। सर 1-2 इंच की और हाइट, हाँ हाँ। वेल डूइंग अ जॉब दैट मेक्स, मतलब जिसमें कम पे भी हो मगर डिजाइनिंग समथिंग दैट मेक्स यू हैप्पी, जैसा हम्म। आप करना चाहो वैसा। सो ये 2 चीजें हैं। और वेल एक ड्रीम, एक छोटा सा कॉटेज हाउस हाँ हाँ। हिल्स पे, ओके। तो जहाँ आप विंटर विंटर स्पेंड करो अच्छे से। वाह, मुझे बुला लेना यार, हाँ, फ्री कोई हॉलीडे कूपन चाहिए होगा। एक साथ करेंगे सर हॉलीडे। नो इश्यूज। और हाउ अबाउट श्रेया? Sir, I think traveling, but not just for the sake of traveling, but कुछ काम के related. Like if I go somewhere, I want to do something there. And sir, my education matters to me. And सर एक छोटी सी जगह, जैसे उसने बोला कॉटेज, अपना एक अपना कुछ होना चाहिए घर। होना चाहिए ना। और हाँ, और सर to be more productive and learning more new things. So, मतलब क्वेश्चन ध्यान रखना, ये सारी चीजें आपको इंट्रिंसिकली हैप्पी करनी चाहिए, है ना, नॉट ओनली फ्रॉम Yes, आउटसाइड। हाँ, yes, मतलब ये sir. सभी I के think लिए if I है। हाँ, ठीक है, आई अंडरस्टैंड। yes, मदिहा, कैमरा ठीक करना, लैंडस्केप में करना, लैंडस्केप में मतलब अपना मोबाइल घुमाओ, हाँ, और उसका लॉक खोलो, है ना। यू पीपल यूजुअली लॉक योर स्क्रीन ना, जिसके कारण से जो है वीडियो घूम जाता है। तो दिस इज द आइडिया। टिल दैट टाइम लेट मी आस्क निखिल। निखिल, क्या चीजें होनी चाहिए 5 जिससे कि मतलब अंदर से खुशी मिले? सर कुछ मतलब ऐसे फैक्टर्स नहीं है सच, बस वही बैलेंस्ड रहे सब कुछ, थिंग्स गेट बैलेंस्ड एंड हैप्पीनेस ये मेन वो है, पॉइंट है सर जिस पे फोकस है, ओके ये चीज ओके, आई बैलेंस। अंडरस्टैंड। हाउ अबाउट नमन? Sir, it would be really cool if I'll be physically fit, financially stable. I want to do multitasking. Like I can't do multitasking right now. And ओके, if तरीके का मल्टीटास्किंग। I can do 2 things at a time. If like I'm thinking something and I'm making something, or like if I'm somewhere, I can also think about a lot of things. And uh, I if it, like I want to be disciplined enough. Like I'm not disciplined right now, and I think I lack that, and I want that. ओके, Right now, I want a good internship, so that is हाँ, it. एवरीबॉडी वांट्स अ गुड इंटर्नशिप राइट नाउ, दैट इज फॉर श्योर। हाउ अबाउट रमनी? थैंकफुली तेरा जो है कैमरा ऑन है। यस सर। हम्म। मुझे थोड़ा इंडिपेंडेंट होना है, लाइक मुझे लगता है कि मैं अपने पेरेंट्स पे, मैं पूरी फैमिली पे कुछ ज्यादा ही डिपेंडेंट हूँ हर चीज के लिए, Okay. तो मुझे थोड़ा इंडिपेंडेंट होकर ट्रैवल करना है।
इंट्रिंसिकली हैप्पी होने की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है ना। इट हैज कम। आतिफ, व्हाट आर दी थिंग्स की 4 से 5 चीजें जो कि मिल जाए तो बस अंदर से खुशी मिलना चालू। सर एज सच कोई पर्टिकुलर चीज ही है, आई यूजुअली फाउंड हैप्पीनेस इन अ मोमेंट, किसी सर चीज में खाना, usually- इसके बट लिए खाना है। ओके। बट सर बट मसल कार हाँ हाँ। सही बात। सर ट्रैकिंग एंड ऑल, गोइंग टू कैंप, हाँ मतलब थिंग्स मेक वो पीपल सब हैप्पी, है। राइट। मतलब इसमें कोई दो मत है भी नहीं। एंड वी विल रिक्वायर फिजिकल फैसिलिटीज ना। अगर हमारी इकोनॉमी जीरो है या बहुत मिनिमल पे है तो वी कैन नॉट बी हैप्पी लिविंग। तो कुछ ना कुछ रिक्वायरमेंट्स तो होती है। और दिस कोर्स विल ऑलवेज एंड मतलब ये कभी भी आपको मंक नहीं बनाएगा, या आप में से किसी को ये नहीं कहेगा कि सब दुनियादारी और ये सारी चीजें बेकार है। You should earn a lot, and also I will say help boost the economy as well, क्योंकि अगर फास्ट कार्स हैं और क्या बोलते हैं इतनी इंजीनियरिंग हुई है तो उसके टेकर्स भी होने चाहिए, और एल्स दी पीपल हु हैव डन सो मच ऑफ गुड इंजीनियरिंग वो बेकार ही जाएगी। तो वो चीज तो है, बिल्कुल है। तो अच्छा चलो, मैं लेट मी फर्स्ट फिनिश दी स्लाइड्स फास्टर देन, और उसके बाद जो है हम इस डिस्कशन पे फिर से आएंगे। अब देखिए, दो तरीके से जो है लोग लिस्ट बनाते हैं, ठीक है। एक है हेल्थ, है ना, कि एक्सरसाइज करेंगे हेल्थ बनेगी, हेल्थ बनेगी हैप्पीनेस आएगी। ये बिल्कुल सही तरीका है, इनफैक्ट इसमें कोई मत या कोई दो मत नहीं है, या कोई प्रॉब्लमेटिक चीज नहीं है कि अगर हम फिजिकली गुड हेल्थ में है ना, तो हम आंतरिक रूप से भी खुश होते हैं। और आपने देखा होगा कि अगर हम में से कोई बीमार पड़ता है तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे हमारा मेंटल स्टेट भी जो है काफी पेनफुल हो जाता है ना। तो दिस इज समवेयर वर्क ऑल्सो, कि हम अपनी हेल्थ को जो है मेंटेन करें, मैनेज करें, है ना। वी शुड ऑलवेज एंजॉय गुड हेल्थ, हमारी बॉडी जो है प्रॉपरली फंक्शन करती रहे, एंड सो ऑन। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, और हम मानते भी हैं कि एक्सरसाइज करेंगे या डिसिप्लिन रहेंगे, बॉडी जो है ठीक रहेगी, हेल्थ ठीक रहेगा, तो वी विल अटेन हैप्पीनेस। एंड एब्सोल्युटली देयर इज नो डाउट अबाउट इट कि इफ योर बॉडी इज वर्किंग प्रॉपरली, सो यू आर हैप्पी इन वन वे और द अदर, ठीक है ना। तो ये एक चीज है। दूसरा जो है वो हमारा ये तरीका है ना, कि हम educate होते हैं so that we get a job, then we get money out of it, then we can afford all this and we are happy। तो ये भी जो है बिल्कुल सही तरीका है कि we educate, और we want to be educated so that we get a job, we earn money, we afford all our luxuries जो भी हमारी रिक्वायरमेंट्स हैं, एंड डेफिनेटली आफ्टर दैट वी रीच हैप्पीनेस। दोनों चीजें बिल्कुल सही है, ठीक है। इसमें कोई जो है कंट्रोवर्सी है ही नहीं कि अगर गुड फिजिकल हेल्थ में है जो भी हमारी रिक्वायरमेंट है, और अगर वी आर अर्निंग एंड वी आर अफोर्डिंग आर लग्जरीज, सो वी आर हैप्पी। तो ये एक सही चीज है। uh, इसमें थोड़ी सी कुछ चीजें मैं आपको बता दूं। Because when you have realized what you value, to be virtuous for a human being is to know its value, to know the value of its virtuous, his or her role, the broader network team of things, the order। वो ऑर्डर क्या है थोड़ा सा समझ देखिए। तो ये 4 ऑर्डर्स हैं जो कि मैं आपको बता रहा था कि इसमें जो है हमारी डिपेंडेंसी और हमारी जो है बातें हमको कोर्स में पूरा करना होगा। तो मैं जस्ट आपको फॉर दी टाइम बिंग दिखा के चला जाता हूँ। और ये मैंने 4 डायमेंशंस जो कि इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। हमारा लिव फॉर आवरसेल्व्स, दैट इज फर्स्ट स्टेज। उसके बाद जो है फैमिली, उसके बाद नेचर, एंड लास्ट जो है, चारों में जो है हमें कोऑर्डिनेशन। अब ये कुछ हैं जो कि मैं आपसे थोड़ा सा और बात कर लूं। टू बी वर्चुअस इज टू नो योर वैल्यू, टू नो योर वैल्यू इज टू
and to live with happiness. And may I ask all of you, what do you understand by prosperity? Is prosperity, let me ask this, is prosperity like that I am growing richer every day, or growing richer every year? ये prosperity है? सर बीइंग सक्सेसफुल तो आता ही है ना प्रॉस्परस होने में, लाइक हैप्पी हो, सर सक्सेसफुल तो हो, ग्रो मतलब ग्रो वही किसी करना। भी वे में ग्रो करना वुड बी प्रॉस्पेरिटी। किस तरीके से ग्रो करना prosperity? सर फाइनेंशियली भी हो सकता है, कोई इमोशनली भी प्रॉस्पर हो सकता है, या लाइक किसी नॉलेज भी नॉलेज में भी कोई अगर ग्रो कर रहा है सर, भी टाइप में ग्रो करना तो वो प्रॉस्पेरस हुआ। Is it material, physical, mental? मेंटल एंड मटेरियल होगा आई गेस सर, अच्छा क्योंकि चलो अच्छा चलते हैं. Let us read these slides and try to come to the discussion on a later. हैप्पीनेस का रिजोल्यूशन, फियर एंड ग्रीड से बाहर निकलना एंड सारी चीज जो है हमें समझ में ही आती है. और अगर हम क्रिएट कर लें बिटवीन ऑल दी 4 लेवल्स एंड ऑर्डर्स तो काम बन जाता है. लेकिन एक्चुअली जो है काम बन नहीं पाता है. क्यों नहीं बन पाता है? हु डिसाइड्स व्हाट इज वैल्यूएबल, वेदर इट इज द सोसाइटी, मार्केट और मीडिया? ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. आप या मैं किसी दूसरे की ड्रीम चेस कर रहे हैं, किसी दूसरे की ड्रीम जी रहे हैं, तो इट इज समथिंग विच हैज बीन जो हम पे थोपा गया है, रादर देन वो चीज हम करना चाहते हैं. ठीक है ना? या मार्केट ड्रिवन या मीडिया ड्रिवन बहुत सारी चीजें होती हैं जो हमें इतनी सटल होती हैं कि कभी कभार समझ में भी नहीं आती और हम उसको चेस करने लग जाते हैं ना. मुझे बहुत अच्छे से याद है एंड कि एक फैकल्टी मेंबर दूसरे फैकल्टी मेंबर के बेटर कार से बहुत परेशान होता है ना. और कभी कभार जो है मार्केट आपको बताती है कि आपको इस चीज की जरूरत है. कभी कभार मीडिया आपको बताती है कि ये चीजें अगर नहीं करेंगे तो आप पीछे रह जाएंगे. एंड वी गो फॉर दैट ब्लाइंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ फॉलोइंग दोस थिंग्स. ठीक है, ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है. और जो डिजायर्ड स्टेट ऑफ बीइंग है वो हार्मनी एट ऑल 4 लेवल्स ऑफ आर. मैं आपको लाइक राइट नाउ आई डू नॉट, ठीक है, इनफैक्ट आई डू नॉट ओन अ टू व्हीलर एज एंड पुअरेस्ट फैकल्टी मेंबर ऑफ तरीके से, क्योंकि नॉर्मली फैकल्टी मेंबर्स के पास टू व्हीलर या फोर व्हीलर में से कोई एक, मोस्टली के पास फोर व्हीलर्स हैं, कुछ के पास सिर्फ, एंड आई डू नॉट ओन इवन अ सिंगल थिंग. तो बट देन आई डू नॉट रिक्वायर, है ना. तो मुझे ऐसा लगता है कि आई डू नॉट नीड इट, तो आई डू नॉट ओन इट. लेकिन दूसरी तरफ से जो है, जब ये प्रेशर पड़ता है कि भाई अगर आप फैकल्टी मेंबर हैं तो आपके पास एक कार होनी चाहिए, है ना. फिर ये होता है कि अगर आप इतने सालों से फैकल्टी मेंबर है तो आपके पास इतनी अच्छी कार तो कम से कम होनी चाहिए, एंड सो ऑन आर सोसाइटी ड्रिवन. ठीक है. या कभी कभार आपको मार्केट बताता है यार ये कार सस्ता हो रहा है, तो भाग जाता है. या कभी कभार मीडिया बहुत सारी चीजें बताता है. तो ये सारी चीजें हमें समझ में नहीं आती. ठीक है. अच्छा चलिए, एक चीज और जो मैं आपको बताता हूँ, रीडिंग, रिमेम्बरिंग मीनिंग एंड अंडरस्टैंडिंग. यू रीड और लिसन टू वर्ड्स यू एंड रिमेम्बर देयर मीनिंग, बट यू आर नॉट मेकिंग एनी सेंस. तो कहा जाता है कि यू मस्ट अंडरस्टैंड और यू डाई. दैट इज द थिंग. क्योंकि देखिए, एक ब्लाइंड फोल्डेड रेस है ना, जिसको कहते हैं रैट रेस, टेक्स अस नोवेयर. ऑन द अदर हैंड, इफ वी आर वेरी क्लियर विथ आवर अंडरस्टैंडिंग कि चाहिए क्या, करना क्या क्या है, एंड सो ऑन, so we can be quite content. If I can pick up the word from Shreya's day before yesterday's class, तो it was contentment, right? तो वो चीज जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है. बट एनीवेज, थोड़ा सा और आगे चलते हैं. वी आर बॉर्न, वी डू नॉट नो व्हाई. ये हाइडेगर ने कहा भी था कि वी आर थ्रोन इनटू दिस वर्ल्ड, है ना. एंड वंस वी आर हियर,
find ourselves among family members under the care of our parents, mother, father, sister, brother, aunts, uncles, और हम उसी तरीके के हो जाते हैं, है ना? कोई अपने आप को रिलीजन से पहचानता है, कोई अपने आप को किसी फैमिली नेम से पहचानता है, कोई अपने किसी और चीज से पहचानता है, एंड सो ऑन, रादर देन व्हाट वी आर और व्हाट वी वांट टू बिकम, है ना? तो उसको हम कहते हैं एस्क्राइब स्टेटस, सोशियोलॉजी की भाषा में, है ना? तो हमने वो चीज भी पढ़ी हुई है, तो आई कैन यूज दिस. We seem to have been living in a very fragmented life. We are not fully aware of the significance of our existence, our individual life, our role in our family, society, and finally in nature, or the entire existence. Most of us are concerned about our desires, goals, past, present, and future. ये स्टेट है, इसी में ही हम जो है हमारी सारी जिंदगी निकल रही है. Some think about family, but only in a very narrow sense. ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ना? एंड जो मैंने उस दिन भी बोला था आपको कि 5 चीजें जो कि आपको खुश कर रही हैं, उसमें कहीं भी आपके रिलेशनशिप गोल्स नहीं आ रहे. मतलब अगेन आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दोस रिलेशनशिप गोल्स एंड कपल गोल्स जैसे आप लोग कहते हो, द सेम एंड फॉर अ डेट आउट एंड दिस एंड दैट, और वी विल ईट दिस, और यू नो वी विल डू दैट, ब्ला ब्ला ब्ला. आई एम टॉकिंग अबाउट रिलेशनशिप्स इन जनरल, जैसे मैंने उस दिन भी बोला था, इज बिटवीन एवरी पर्सन विद आर रिलेटिव. तो है उसके बारे में हम जो है कहीं ना कहीं अभी भी आ नहीं पा रहे. वी आर कनेक्टेड बाय इंटरनेट बट डिसकनेक्टेड फ्रॉम यू ना. ये तो दलाई लामा की एक बहुत फेवरेट लाइन भी है, जहाँ पे कि उन्होंने बहुत सारी चीजें बोली है, दैट हैव बिकम वायरलेस बट एंड वी आर अनवायर्ड टू एवरीबॉडी, है ना? तो हम जो है वो भी नहीं कर पा रहे. Very few of us who really think beyond family talk about society. Rarely are such individuals who are interested in social work without any personal reason, है ना? हम कोई सोशल वर्क भी या कोई अपलिफ्टमेंट ऑफ द सोसाइटी भी जो है नहीं कर पाते. वैसे बहुत सारे लोग अफोर्ड करते हैं. आपके डिपार्टमेंट के 2 लोग हैं, मैं डिस्क्लोज नहीं कर सकता बिकॉज they have donated many a times to Vikalp and also to a lot of other social causes, and they wanted to keep themselves anonymous, तो इसलिए मैं भी उनका नाम नहीं ले रहा हूँ. The thing is कि we can help a lot of people as well, but we do not want to help them, है ना? तो ये सारे स्टेट्स भी जो है बेसिक स्टेट्स हो गए हमारी लाइफ के. We complain about corruption, crime, but do nothing about it. ये truth है. There is a fear, distrust, as well as deprivation. है. Many of us who want to help others are helpless in our own case, है ना? कभी कभार अच्छे, क्या कहना चाहिए कि अच्छे उपदेश या अच्छे चीजें तो लोगों को बता देते हैं, डिस्कशंस कर लेते हैं, या लोगों को शायद सही चीज भी बताते हैं, लेकिन जो हमारे ऊपर होता है तो हम नहीं कर पाते, है ना? तो इट इज समथिंग विच हैज हैपेंड अ लॉट. मोस्ट ऑफ अस डू नॉट केयर अबाउट नेचर एंड एनवायरनमेंट. ये भी एक सच्चाई है ना. वी आर नॉट डूइंग एनीथिंग फॉर इट्स कंजर्वेशन, वी आर डिस्ट्रॉइंग इट. और जैसे मैंने बोला था कि ये कोर्स लेटर ऑन आपको इन सारी चीजों से ऊपर उठा के लास्ट लेवल पे लेके जाएगा, दैट इज एनवायरनमेंट, नेचर एंड सो ऑन. And it is like we care for our body only when it is sick. Similarly, we are concerned about nature, environment, wildlife, jungles, rivers, earth, because we have destroyed it to the extent that there is imminent danger, rather inevitable, of our extinction, है ना? तो ये भी एक जो है प्रॉब्लम होती जा रही है, बढ़ती जा रही है, कि वही है कि जब बीमार पड़े तो प्रॉपर डाइट लिया, दवाइयां ली, थोड़ा सा हेल्दी लाइफस्टाइल अडॉप्ट किया, लेकिन नॉर्मली नहीं करने को तैयार, है ना? और उसी तरीके से एनवायरनमेंट पे भी तभी ध्यान देते हैं जबकि सर के ऊपर पानी निकल जाने लगे. ये नहीं कि हमारे एक्ट्स को अगर हम थोड़ा सा मॉडरेट करें तो हम एनवायरनमेंट को परेशानी या प्रॉब्लम में नहीं डालेंगे. Have you tried to think about your existence as an individual? Do we completely understand nature of our existence? Question है, सोचिएगा. Value education must provide the connection between individual, family, society and nature. बड़ी important और चीज है वो. वैल्यू को आप
अगर मैं बहुत सिंपल सा एग्जांपल लूं तो पेन के उसकी तरह जोड़ सकते हो आप the clip which is attached to every pen ना usually 95% 99% पेन्स में जो होगा क्लिप होगा एक, है ना, which adds value to that pen. क्या करता है वो आपको पेन को इजीली कहीं पे रखने में हेल्प करता है, whether it's your pocket or whether it's a thread, whether it's anything for that matter, है ना. तो यूजुअली पॉकेट्स में कैरी करने में हेल्प करता है. तो वैल्यू एजुकेशन आपको पेन बनाना तो नहीं सिखाएगा, वो आपको आर्किटेक्चर सिखाएगा, वो आपको इंजीनियरिंग सिखाएगी, वो आपको साइंसेस सिखाएगा. लेकिन वैल्यू एजुकेशन डेफिनेटली आपको जो है वो क्लिप ऐड करना सिखाएगा, जिससे कि आपके लिए ये हेल्पफुल हो जाएगा कि आप अपने रिसोर्सेस को प्रॉपरली चैनलाइज कर सको, एंड स्पेशली फॉर द ग्रेटर कॉमन गुड एंड वेलबींग ऑफ society and environment at large. You are not confined to individual, you are not confined to your family, but you are going ahead of all these things and also doing something. It's like we are playing our bit, है ना, जो हम थोड़ा सा कर सकते हैं ना हम करें, because it is very important that we should do our bit in this world. Usually we are not doing. तो ये एक environment है. और ये लास्ट लाइन आप हमेशा ध्यान रखना, कॉन्टिन्यूअस हैप्पीनेस एंड प्रॉस्पेरिटी इज ए रिक्वायरमेंट. जैसे उस दिन शायद चंचल ने कहा था कि अगर हमेशा हैप्पी होंगे तो नहीं समझ पाएंगे या मजा नहीं आएगा. मैं आपसे आज उस बारे में थोड़ी सी बात करूंगा, एंड वी विल ऑल्सो ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट बेसिकली इज प्रॉस्पेरिटी. ठीक है, लास्ट स्लाइड है ये फॉर द डे. नीड ऑफ वैल्यू एजुकेशन क्या है? करेक्ट आइडेंटिफिकेशन ऑफ आवर एस्पिरेशंस. ये एस्पिरेशंस आपको अपने जानना बहुत जरूरी है. कैसे जानोगे? द वर्ड इज सेल्फ एक्सप्लोरेशन. और जब तक आप खुद एक्सप्लोर नहीं करोगे आप अपने एस्पिरेशंस कभी नहीं जानोगे. मैं प्लीज बुरा मत मानिएगा, अगेन डू नॉट टेक मी अदरवाइज और डू नॉट थिंक दैट आई एम say rifting you off from people, but believe me, if you are chasing your dad's or mom's dream or your elder brother or elder sister's dream or your friend's dream, you are not doing justice to your life. ठीक है, तो you need to understand your own aspirations and for it rather than chasing someone else's dream. मेरे पापा का सपना था कि मैं डॉक्टर बनूं और मैं डॉक्टर बनने के लिए चला गया, या मैं डॉक्टर बन भी गया, खुश नहीं रहूंगा. ये चीज इंपॉर्टेंट है और इस चीज को समझिएगा. Understanding universal human values to or for continuous fulfillment of our aspirations. Values and skills are complementary, इसके बारे में हम बात करेंगे. And evaluation of our beliefs, क्योंकि मोस्टली जो है हमारी अंडरस्टैंडिंग और हमारी बिलीफ्स को हम क्वेश्चन नहीं करते. ये एक और बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, जिसके कारण से होता क्या है कि वी लिव with what we have been told. We do not explore and find that what has been told was not the right thing, or maybe it was damn good and right. But in order to appreciate it even or discard it, you first need to explore it. है ना, सिर्फ बता दिया है इसलिए मान लिया गया है, ये नहीं चल पाएगा. एंड स्पेशली इन दिस एज, तो जैसे मैं आपको कोई चीज पढ़ा रहा हूँ, आप कभी भी चेक करके देख सकते हैं सही पढ़ाया था कि नहीं, राइट. तो यू नीड टू एक्सप्लोर. अगर आप ये मान के चलें कि ओके इस टीचर ने ये चीज बताई थी एंड आई हैव टू फॉलो इट, इट कैन बी रॉन्ग, इट कैन बी रॉन्ग, है ना, एंड देन यू आर एट अ रॉन्ग फुट एज वेल. तो ये चीज भी इंपॉर्टेंट है. हम कंटिन्यू करेंगे यहाँ पर